Good morning, dear students. So, today we will start functions. In functions, we have to discuss what is function, types of functions, and operations on functions. Although we have done relations, so now this function it's very important in our mathematics. Function, this topic is very, very important for mathematics. See, this word functions it sounds like function means something it is working. Understood? The common meaning you can say function is something it is working. When we talk about the common meaning, let's say, suppose you have purchased a refrigerator or fridge. So, what is the function of refrigerator? It cools the things, fine. So, if doesn't cool, then we what we say fridge is not working. Same thing. Let's say you have if you have purchased air condition, the role of air condition is what? It has to maintain the temperature, like to the surroundings becomes cooler. So these are general terminology. We call it as a functions. Let's say a two-wheeler. So function two-wheeler is running. If you put the petrol on this, then two-wheeler is working or two-wheeler is running. So everything these are common use what we say functions. But in mathematics, there the meaning of functions, roughly what you can say, uh, is used to define the dependence of one quantity on another. Fine. What you can say roughly to dependence of one physical quantity to on another. Let's say an example, if I am taking volume of a sphere of radius r, so we write v equals to 4 by 3 pi r cube. Correct? This is what volume of sphere. Now this v depends on r. Correct? So as we can say v equals to function of r. This way we have written. So this is what we call v is a function of r. Understood? So this f we have used, you can use any other letter also, t of r also, correct? So these are function notation. So this volume depends on the radius of this sphere. Radius will increase, volume will increase, radius will decrease, volume will decrease. So we can say that volume v is function of r. आर के घटने बढ़ने से ही वॉल्यूम भी इम्पैक्ट होता है. तो ये बड़े रफली मीनिंग में हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं. दैट मीन्स कि डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी टू ऑन अनदर क्वांटिटी. करेक्ट? थोड़ा इसको और एलॉबरेट करें फंक्शन को, तो हम फंक्शन को कहते हैं फंक्शन इज अ रूल. ठीक है? इसको रूल भी कहते हैं. फंक्शन इज अ रूल. वाई फंक्शन इज अ रूल? लेट्स से देखो, आप जब आप नर्सरी में पढ़ते थे तो आपको ए बी सी डी सिखाई जाती थी, 1 2 3 4 सिखाई जाती थी. तो ए बी सी डी आपको बड़े अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल लेटर से सिखाया जाता था, ए बी सी डी एफ जी. करेक्ट? ऐसा तो नहीं सिखाया जाता था ए फिर जेड फिर डब्ल्यू फिर एक्स, ठीक है, फिर टी. ऐसे तो हमें नहीं पढ़ाया गया. आपको ए बी सी डी ई एक सर्टेन रूल से उन्होंने लर्न कराया. ठीक है? जो आज तक आपको लर्न है. ठीक है ना? जैसे 1 2 3 4 आपको पता है कि ये नंबर्स आपको नर्सरी क्लास में सिखाई गई. तो आप 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन यू लर्न दिस. करेक्ट? मैथमेटिक्स आपके टीचर ने कभी आपको 1 के बाद डायरेक्ट 2000 नहीं बोला कि 1 देन 2000 देन 3000 और 29. ऑल्दो दीज आर नंबर्स बट दे मेड इट एज ए रूल बना के उन्होंने आपको लर्न कराया. करेक्ट? सो इंटायर मैथमेटिक्स जो है ये एक रूल होती है. करेक्ट? लेट्स से अगर मैं साइन थीटा लिखा तो ये एक रूल है दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल दिस इज इफ थीटा and ABC is a right angle triangle and this is hypotenuse and this is perpendicular, तो हम P by H कहते हैं. ठीक है? So this is again a rule. तो मैथमेटिक्स में एवरीवेयर इट इज़ अ रूल.
हम मैथमेटिक्स में हम ऐसे नहीं पढ़ते वंस अपॉन अ टाइम साइन थीटा वाज देयर, साइन थीटा हैज़ 3 सन्स, ऐसे हम नहीं पढ़ते हैं। तो मैथमेटिक्स इज प्योरली अ रूल, पूरी रूल है मैथमेटिक्स। तो हमने यहाँ पे एलोबरेट किया कि फंक्शन इज अ रूल। लेट्स से मैं लिख दिया x+2 = 5, तो मुझे x की वैल्यू निकल सकती है, तो ये एक रूल आया कि ये x+2 = 5 है, तो x = 3 आया, करेक्ट। लेकिन अगर मैं x+CAT=5 लिख दूं, तो व्हाट इज गोइंग टू बी x नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल रूल। दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल रूल, ये मैथमेटिकल रूल नहीं है, करेक्ट। So this is not a mathematical statement, or you can say rule. So x+CAT=5, x we cannot get, but the same time x+2 5, तो x = 3 मिला। So all these are ruled here. तो मोटा मोटी आप फंक्शंस को क्या समझते हैं? फंक्शन इज अ रूल। बेसिकली ये पूरी रूल है, पूरी मैथमेटिक्स जो होती है, जो आप नर्सरी से स्टार्ट किए हो और आज तक पढ़ रहे हो, एवरीवेयर देर आर रूल्स आर देयर। लुक एट दिस, आप पीछे याद करो 9, 10, 6, 5, 8, 7, everywhere the rules are operating in mathematics, correct? Addition laws, multiplication, LCM, HCF, all are rule, correct? फैक्टराइजेशन किया आपने, ज्योमेट्री किया, सब कुछ आपने रूल बेस्ड किया, ठीक है। सो फंक्शन इज अ रूल। अब इसको फंक्शन को हम सेट थ्योरी में डिफाइन करते हैं, सेट थ्योरी के लैंग्वेज में फंक्शन को। नाउ लुक एट दिस, how function is defined in set theory। मीन्स इसको आप डिफाइन करने के लिए हम ऐसा भी कहते हैं डियर कि let a and b uh, any two be any two non-empty sets, be to any two non-empty sets, ठीक है। दो ए और बी, हमने दो नॉन एम्प्टी सेट्स लिए, ठीक है। नाउ अ फंक्शन, इसको मैं सेट के लैंग्वेज में डिफाइन कर रहा हूं। अ फंक्शन फ्रॉम ए and B is a rule और correspondence कह सकते हैं इसको, रूल और correspondence that assigns to each element of set A, to each element of set A, one and only one element of set B, one and only one element of set B, करेक्ट। इस तरीके से मैंने इसको डिफाइन किया। इसमें मैंने क्या लिखा कि अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी is a rule or correspondence that assigns to each element of set A one and only one element of set B। Means कि set A, मान लो आप ये set A है, इसके एलिमेंट है 1, 2, 3, करेक्ट, और ये एक set B है, इसके एलिमेंट है x, y, z। तो फंक्शन कहता है कि एलिमेंट ऑफ सेट A एक एलिमेंट ऑफ सेट बी के साथ एक यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? यूनिक एसोसिएशन मतलब 1 x के साथ ही कनेक्टेड रहना चाहिए, 1 y के साथ नहीं। 2 y के साथ एसोसिएट होना चाहिए, 3 z के साथ एसोसिएट होना चाहिए, करेक्ट। 1 को x है तो 1 y नहीं होगा,
1x और 1y पॉसिबल नहीं है, दैट इज नॉट अ फंक्शन. ठीक है, 1x इज पॉसिबल, बट 1x और 1y दोनों नहीं पॉसिबल है. वो रिलेशन होता है, रिलेशन में हमें ऑर्डर्ड पेयर 1x 1y मिल सकते हैं. ठीक है, बट फंक्शन में एक एलिमेंट को एक ही इमेज हो, इसको इमेज कहते हैं. बी वाले एलिमेंट को इमेज कहते हैं. कहने का मतलब कि जो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैं, सेट बी के एलिमेंट के साथ वन एंड ओनली वन एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होने चाहिए, कॉरस्पॉन्ड होने चाहिए. ठीक है, या एसोसिएशन जो होना चाहिए यूनिक होना चाहिए. वन के साथ एक्स, टू के साथ वाई, थ्री के साथ जेड. अब आप बोलेंगे सर वन का एक्स हो गया, टू का भी एक्स हो सकता है. यस, हो सकता है. अगर मैं बोलूं यहाँ पे मैं वन को एक्स से दिखाया, टू को वाई से नहीं दिखा के टू को एक्स से दिखा दिया, तो भी चलेगा. इट इज करेक्ट. बट जब टू का एक्स से हो गया तो टू का वाई से नहीं होगा फिर. क्लियर? तो ये सारी चीजें अभी टाइप्स ऑफ फंक्शन में भी क्लियर होगा. तो अभी हमने ये देखा कि फंक्शन सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए, एक ही रिलेशनशिप होना चाहिए. 1 to x, 2 to y, 3 to z. ठीक है, जैसे ये 1 to x, 2 to y एंड 2 to z, ये जो ऑर्डर्ड पेयर आए ये फंक्शंस हैं. लेकिन मैं अगर कहूँ कि ये फंक्शंस हो गए, ये फंक्शंस के ऑर्डर्ड पेयर हो गए. बट अगर द सेम टाइम अगर बोलूँ 1x 1y, नो, इट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि वन के दो इमेज हो रहे हैं. बी के एलिमेंट को इमेज कहते हैं. एलिमेंट्स ऑफ बी आर सेड टू बी इमेज ऑफ, सेड टू बी, इसको आप कहते हैं इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ ए. एलिमेंट ऑफ ए का ये इमेज कहलाता है. ठीक है, और 1 2 3 क्या कहलाता है? प्री इमेज. और इस 1 2 3 को क्या कहते हैं? प्री इमेज ऑफ एक्स. प्री इमेज ऑफ एक्स वाई जेड. ठीक है, 1 क्या है? प्री इमेज ऑफ एक्स है. वाई 2 क्या है? प्री इमेज ऑफ वाई है. 3 क्या है? प्री इमेज ऑफ जेड है. और इधर x क्या है? इमेज ऑफ 1 है, इमेज ऑफ 1. y क्या है डियर? इमेज ऑफ 2. एंड z इज इमेज ऑफ 3. इमेज एंड प्री इमेज. और ये एसोसिएशन क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए. 1 का x के साथ, 2 का y के साथ, 3 का z के साथ. ठीक है, अगर हमने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि 1x से साथ एसोसिएट है, क्या 2x के साथ भी हो सकता है? हो सकता है, बट 2 फिर y किसी और के साथ नहीं कनेक्ट होनी चाहिए. लेट्स से मैं अगर ऐसे दिखाऊं, ये पिक्चोरियल नोटेशन होता है फंक्शन का. अगर मैं एक सेट लिया 1 2 3 और ये x y z, तो आपने 1 को x के साथ एसोसिएट किया, 2 को भी x के साथ और 3 को भी x के साथ, तो भी ये फंक्शन है. ठीक है, 1 का x, 2 का x एंड 3 का x. ये जो ऑर्डर्ड पेयर आए, जो एसोसिएशन हुआ एलिमेंट्स ऑफ ए का बी के साथ, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन. लेकिन ए के सभी एलिमेंट एसोसिएट होना कंपलसरी है, बी का जरूरी नहीं है. बी में अगर कोई रह भी जाता है तो इट्स ओके, लेकिन ए के हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन होना बी के साथ कंपलसरी है. देन वी कैन से दिस इज अ फंक्शन. इसको मैथमेटिकली ऐसे डिनोट करते हैं, फंक्शन सच दैट ए टू बी. ठीक है, एफ सच दैट ए टू बी कहते हैं. करेक्ट. ये जो एफ है इसको एज ए रूल समझ सकते हो, ये एफ एक्स है बेसिकली. अगर एक्स में फंक्शन है तो एफ एक्स हो गया, टी में फंक्शन रहेगा तो एफ टी लिख देंगे. करेक्ट. और ये अंडरस्टूड, ये नोटेशन होता है एफ सच दैट ए टू बी. दिस इज व्हाट वी कॉल फंक्शन. सो रफ आइडिया, एक फाइनल आइडिया आपको फंक्शन के बारे में आ गया कि फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी means each and every element of A, each and every element of A, each and every element of A has unique association
यूनिक एसोसिएशन with the elements of B, with the elements of B, करेक्ट. सो इसको हम कह देंगे फंक्शन. जैसे आप लेट्स से एक फंक्शन हमने ले लिया एफ सच दैट साइन एक्स, आपको मैं दिखा रहा हूं, साइन एक्स लिया, ठीक है. तो ये जो ए है एक सेट, इस फंक्शन में जिसको ए लेते हैं, ए टू बी अगर मैंने यहाँ डिफाइन किया है, तो इस ए का नाम डोमेन होता है. सेट ए का नाम डोमेन होता है और ये सेट बी का नाम रेंज पड़ता है, ठीक है. तो मान लो मैं ए टू बी एक एफ सच दैट एक साइन एक्स फंक्शन लिया है, तो मैं एक्स की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री डालता हूँ, सेट ए है. और ये बी एक सेट है, साइन 0 क्या होता है 0, तो ये ऐसे एसोसिएट होगा. साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 इज 1/√2. तो दिस इज व्हाट अ फंक्शन, ठीक है. साइन 0 1/2 कभी नहीं होगा, तो 0 0 से एसोसिएट है. साइन 30 0 नहीं होगा, तो 30 1/2 के साथ एसोसिएट है. अंडरस्टूड. सो ये फंक्शन के जो आप माइक्रोस्कोपिक व्यू देख रहे हो, मैं जो फंक्शन के बारे में इतना डिफाइन कर रहा हूँ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फंक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस हमारे मैथमेटिक्स में. तो रफ आइडिया आ गया आपके पास कि फंक्शन फ्रॉम ए टू बी अगर आपको बोलना है, तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के कुछ या पूरे के साथ एसोसिएट हो सकते हैं. बी के कुछ या पूरे के साथ, बट ए के सारे एलिमेंट बी के साथ एसोसिएट होने चाहिए. देन वी कैन से फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, करेक्ट. और एक का एसोसिएशन एक बी के एक ही एलिमेंट के साथ होना चाहिए. सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट के साथ यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए. 1x 2y 3z लाइक दिस. अब 1x और 1y हो गया, देन इट इज नॉट अ फंक्शन, वो रिलेशन होगा, करेक्ट. सो टिल वी हैव सीन अबाउट फंक्शन, ठीक है डियर. इस फंक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसको वन बाय वन हम समझते हैं. तो अभी मैं कुछ 2-4 एग्जाम्पल दिखाता हूँ, पिक्चोरियल नोटेशन. जैसे एक सेट ए है और ये एक सेट बी है. हम टाइप्स में भी इसको क्लियर करेंगे. तो सपोज मैंने यहाँ पे ए बी सी लिखा और ये 1 2 3, ए 1 के साथ एसोसिएट है, बी 3 के साथ एसोसिएट है, बट सी एसोसिएट नहीं हो रहा है किसी से. देन इट इज नॉट अ फंक्शन, देन इट इज नॉट अ फंक्शन. ये फंक्शन नहीं है. क्यों नहीं फंक्शन है? बिकॉज सी को भी एसोसिएट होना चाहिए था, बट सी इज नॉट एसोसिएटेड, देन इट मीन्स इट इज नॉट अ फंक्शन. जैसे आप कॉमन एग्जांपल लो, फ्रिज लिया आपने, कंप्रेसर चल रहा है, बट कुछ ऐसा पार्ट है जो इट्स नॉट वर्किंग, तो हो सकता है डाउन द लाइन वो फ्रिज खराब हो जाए, जल्दी फ्रिज फंक्शन ना करे. यानी हर एक पार्ट फ्रिज का बराबर होना चाहिए, देन फ्रिज विल वर्क. यानी हर एक एलिमेंट ऑफ ए का यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए बी के साथ. बट अनफॉर्चुनेटली सी हैज नो इमेज, ठीक है. सी हैज नो इमेज. ए हैज इमेज, बी हैज इमेज. मैंने बोल दिया एलिमेंट्स ऑफ बी को क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं. और एलिमेंट्स ऑफ ए को क्या कहते हैं, प्री इमेज कहते हैं. इस इमेज का 1 2 3 क्या है, प्री इमेज ऑफ एक्स है. 2 क्या है, प्री इमेज ऑफ वाई है. 3 क्या है, जेड का प्री इमेज है, करेक्ट. इमेज एंड प्री इमेज. और इसको एक टर्मिनोलॉजी डोमेन और रेंज भी कहते हैं. अगर फंक्शन आपका ए टू बी डिफाइंड है, फंक्शन सच दैट ए टू बी है, तो ये सेट ऑफ एलिमेंट्स ए को डोमेन भी कहते हैं. डोमेन जो एक मेजर एरिया है अभी पढ़ने सीखने के लिए, और सेट ऑफ एलिमेंट बी को रेंज कहते हैं. जैसे आपने रिलेशन में भी देखा था, एक्स कोऑर्डिनेट जो था वो डोमेन था और वाई कोऑर्डिनेट रेंज था. ठीक है डियर. तो ये फंक्शन के बारे में हमने ये बातें अभी तक समझी. अब यहाँ से आते हैं डियर, तो हमने ये देख लिया इट इज नॉट अ फंक्शन. अगर मैं एक और पिक्चोरियल नोटेशन दिखाऊं, ए एंड बी 2 सेट्स हैं, ठीक है. इसके एलिमेंट्स मैंने ले लिया ए बी सी और इनके एलिमेंट ले लिया 1 2 3.
तो ए हैज एसोसिएशन विथ वन, एरो देते हैं, एरो डायग्राम भी बोलते हैं इसको। ये जो हम पिक्चोरियल नोटेशन दिखा रहे हैं ये एरो डायग्राम कहलाता है। बी का टू के साथ एसोसिएशन हो गया और सी का भी टू के साथ एसोसिएशन हो गया, तो इट इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, चलेगा, ये फंक्शन होगा। क्यों? ए बी सी सभी यूनिकली एसोसिएटेड है, बी का टू से है, सी का थ्री से है, या थ्री रह भी गया तो भी चलेगा, बट ए के सारे एलिमेंट यूनिकली एसोसिएट होने चाहिए बी के साथ, ठीक है। सो दिस इज अ फंक्शन। सो नाउ डियर, फंक्शन के अब इसके अंदर जो हमें टाइप्स हैं वो टाइप्स हम देख लें। हमने अभी डिफाइन कर दिया फंक्शन, तो ये पूरी बात को अच्छे से समझें। इट्स अ वास्ट एरिया, वन बाय वन आप इस वीडियो को अच्छे से गो थ्रू करिए। फंक्शन का डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके अंदर जो छोटी छोटी बातें हैं, प्री इमेज, इमेज, ठीक है, और ये डोमेन, सेट एक एलिमेंट को डोमेन और रेंज कहते हैं, ये हम आगे भी देखेंगे। सो एट द एंड वी केम टू नो कि फंक्शन का जो सेंस है वो क्या है सेट थ्योरी के लैंग्वेज में। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक एसोसिएशन विद द एलिमेंट ऑफ बी। यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए, एक के साथ एक ही का रिलेशनशिप होना चाहिए, तो ये फंक्शन कहलाता है, ठीक है। आइए नाउ विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो हमें समझने हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, सी देयर आर n नंबर ऑफ फंक्शंस इन मैथमेटिक्स। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन, बट ये जो मैं टाइप्स दे रहा हूं ये फंक्शन के अपने टाइप्स हैं। वो पहले टाइप में पहला टाइप आता है डियर, देयर आर मेनली 4 टाइप्स जो आपको समझना है, एंड देन स्पेशल फंक्शंस विल स्टार्ट। फर्स्ट इट इज वन 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 वन, और इसको इंजेक्टिव भी कहते हैं, और इंजेक्टिव फंक्शन, वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसके डेफिनेशन को समझेंगे, वन वन फंक्शन क्या है, या इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसको डिफाइन करते हैं डियर, अ फंक्शन f such that a to b, set a to set b is called one one function if every इसको यहाँ पे मैं लैंग्वेज में थोड़ा चेंज कर रहा हूं, इफ एवरी इमेज ऑफ या एवरी इमेज इन बी does not have more than one pre-image, in A, pre-image in A, ठीक है। मैंने ऐसे डिफाइन किया आपको। कहने का मतलब क्या हुआ कि वन वन फंक्शन कैसा होगा कि एवरी इमेज इन बी, जैसे मैं एग्जांपल दिखाऊं आपको, ए और बी दो सेट है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, 1 2 3 ले लीजिए, ये ए बी सी ले लीजिए। कह रहा है कि हमने क्या बोला, इसको ए बी सी को क्या कहते हैं, इमेज, एलिमेंट्स ऑफ बी कहलाता है इमेज। तो कह रहा है कि एवरी इमेज इन बी डज नॉट हैव मोर देन वन प्री इमेज, और प्री इमेज कौन से होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए। तो एक ही इस इमेज का एक ही प्री इमेज होना चाहिए, यानी आप इसको कह सकते हो कि एक के साथ एक ही का एसोसिएशन होना चाहिए। जो फंक्शन का डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग भी ये वन वन और फंक्शन एक ही जैसा दिख रहा है आपको, यानी ए बी सी के एक ही प्री इमेज होने चाहिए।
और कह सकते हो कि 1 2 3 यूनिकली एसोसिएटेड हो जाएगा, इसलिए इसका नाम 1 1 भी पड़ता है। ठीक है, 1 1 यानी 1 to A, 2 to B, 3 to C, 1 1 कनेक्शन है। करेक्ट। तो एवरी इमेज इन B डज नॉट हैव मोर देन 1 प्री इमेज, यानी A का 2 प्री इमेज नहीं होना चाहिए एलिमेंट्स ऑफ B के। ठीक है, और यहाँ तो और ये भी तय है कि A के सारे एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए, तभी तो फंक्शन होगा। A के सारे एलिमेंट B के साथ कनेक्टेड होने चाहिए, देन इट इज अ फंक्शन। और उसमें 1 1 क्या कहता है? 1 1 कहता है कि जो ABC है, जो इमेज है, उसके एक ही प्री इमेज होनी चाहिए, ओनली 1 प्री इमेज। A के साथ A का प्री इमेज 1, B का प्री इमेज 2, C का प्री इमेज 3। सो इस तरह के फंक्शन 1 1 फंक्शन कहलाते हैं। मैथमेटिकली प्रूफ भी इसके लिए, मैथमेटिकल जब हम क्वेश्चन में देखेंगे हाउ टू शो दैट दिस फंक्शन इज 1 1, तो इसके लिए मैथमेटिकली इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। मैथमेटिकली लुक एट दिस, इफ fx1 इक्वल्स टू fx2, अगर fx1 इक्वल्स टू fx2 है, दैट मीन्स x1 इक्वल्स टू x2 होना चाहिए। यानी देखो x1 x2 एलिमेंट्स है, तो उसके फंक्शनल जो है fx1 इक्वल्स टू fx2 है अगर, तो x1 इक्वल्स टू x2 होना चाहिए। ये मैथमेटिकली हम उसको प्रूफ करेंगे प्रॉब्लम्स के अंदर डियर। ठीक है, तो 1 1 इट इज क्लियर, 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन हो गया कि यूनिक एसोसिएशन भी कह सकते हो, या इस B के जो इमेज है उसके सिंगल प्री इमेजेस होने चाहिए, इसको कहते हैं 1 1 फंक्शन। नाउ नेक्स्ट वी हैव सेकेंड टाइप which is known as on to, और इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन, ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन। इसको डिफाइन कर लेते हैं। ऑन टू अ फंक्शन f such that A to B is called onto function if range of the function equals to कोडोमेन। अब ये टर्मिनोलॉजी मैं समझाता हूं, इसको ऐसा भी बोलते हैं, दैट इज each element of B has some pre-image in A, करेक्ट। तो अब ये जो कुछ टर्म हमने यहाँ यूज किया, रेंज, कोडोमेन, इन सबको समझते हैं। और ये एंड में मैंने दैट इज लिखा कि ईच एलिमेंट ऑफ बी हैज सम प्री इमेज इन ए। ठीक है, इसको देखो पिक्चोरियल आप समझो, फिर मैं डोमेन, रेंज, कोडोमेन बताता हूँ आपको। ये मैं एक सेट ले रहा हूँ ए, इसके एलिमेंट्स मैंने ले लिया 1 4 7 3 2, ठीक है। और बी एक सेट लिया मैंने, क्योंकि फंक्शन हमारा ए टू बी है, एफ सच दैट ए टू बी ले रहा हूं मैं। तो ये एलिमेंट ले लिया मैंने 3, और ये 5, और ये मैंने ले लिया 7। तो मैं यहाँ पे एसोसिएशन दिखा रहा हूँ 1 को 3 के साथ, ठीक है, 4 को 5 के साथ, 7 को 3 के साथ, ठीक है, 3 को
इस 5 के साथ और 2 को मैंने यहाँ 7 के साथ दिखाया। तो ये देखो एसोसिएशन जो मैं दिखाया यहाँ क्या कह रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ बी, यानी अभी बी के सारे एलिमेंट इनके प्री इमेजेस होने ही चाहिए। पहले तो फंक्शन ये कहता है कि ए के सारे एलिमेंट को इमेज मिलना चाहिए, ए के सारे एलिमेंट को यूनिक कनेक्शन होना चाहिए, वो तो फंक्शन का रूल है, वो तो होना ही चाहिए, ए के सारे एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए। बट ऑन टू में क्या होता है कि बी के सारे एलिमेंट्स, हम बी में कुछ नहीं छोड़ सकते हैं, ए में तो छोड़ना ही नहीं होता है, बट बी में क्या है, बी में वी कैन नॉट लीव अ सिंगल एलिमेंट। बी के सारे एलिमेंट ये ए के साथ इन एक मतलब बी हैज प्री इमेजेस होने चाहिए सारे एलिमेंट के। देखो आप बी का 1 है, 3 का 1, 5 का 4, 5 का 3, 5 का 7 का 2, दैट इज व्हाट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, यानी बी के सारे एलिमेंट इन्वॉल्व होने चाहिए। लेट्स से अगर मैं ऐसा लिखूं a इक्वल्स टू 1 2 3 और एक सेट मैंने ले लिया b 2 3, 1 का 2 से कनेक्शन है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से इमेज है और 3 रह गया। ये फंक्शन तो है बट इट इज नॉट ऑन टू, बिकॉज b का एक एलिमेंट रह जा रहा है, b का 3 एलिमेंट किसी से एसोसिएट नहीं है, सो देन इट इज नॉट ऑन टू। दिस इज नॉट एन ऑन टू, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू क्या कहता है कि बी के भी सारे एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए। ठीक है, यानी बी के सभी प्री इमेजेस मिलने चाहिए, बी के सारे एलिमेंट को प्री इमेज होने चाहिए, देन वी कैन से इट इज ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, नाउ विल गो टू द थर्ड टाइप विच इज वी कॉल इट एज ए मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, मेनी वन नाम से ही लग रहा है, मेनी वन यानी एक एलिमेंट के दो तीन प्री इमेजेस होंगे, एक ही इमेज के 2-3 प्री इमेज। यहाँ पे मैंने जो वर्ड यूज किया अभी बताना रह गया, ये रेंज मैंने बोला यहाँ पे, रेंज। तो ये जो बी का एलिमेंट है उसको क्या कहते हैं, रेंज, ये मैंने पहले भी बोला। और ए के एलिमेंट को क्या कहते हैं, डोमेन। करेक्ट। अब ये को डोमेन का मतलब होता है कि जैसे ही अगर ये सेट बी में देखो आप, 2 और 3 है, 3 का कोई इमेज नहीं बना, तो 2 और 3, 2 के सारे मिल गए बट 3 मेरा खाली रह गया, तो ऐसा सेट को हम को डोमेन कहते हैं, यानी ये बड़ा होगा, रेंज से बड़ा होता है। रेंज का मतलब होता है कि जैसे 3 5 7 एसोसिएट हो गया, तो ये 3 5 7 रेंज कहलाया इस फंक्शन का। बट अगर हमें ये देखो, इस वाले फंक्शन में देखो, 2 के सारे प्री इमेजेस हैं बट 3 रह जा रहा है, तो 2 जो है इसका रेंज है केवल 2 इस सेट बी का, यानी इस फंक्शन का रेंज अगर मैं पूछूं तो केवल 2 होगा, बिकॉज 2 ही कनेक्टेड है तीनों के साथ, 3 इज नॉट कनेक्टेड। बट अगर इसका को डोमेन पूछा गया तो को डोमेन हमारा 2 और 3 दोनों ही होगा। तो रेंज हमेशा को डोमेन से छोटा या बराबर होता है। रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ को डोमेन, याद रखना है। ये कुछ थोड़ी टर्मिनोलॉजी है, इसको समझिए। रेंज क्या होता है, द एलिमेंट्स ऑफ बी, और एलिमेंट्स ऑफ बी के ही एलिमेंट को को डोमेन भी कहते हैं। बट रेंज वो वैसे एलिमेंट होते हैं जो एसोसिएट हुए होते हैं फंक्शन में, जिसका प्री इमेज होता है। बट ऐसे कुछ एलिमेंट जो प्री इमेज जिनके नहीं है और वो सेट बी में भी है, तो ये 2 तो सारे से कनेक्टेड हो गए, तो इसका मैंने 2 को क्या बोला, रेंज। बट को डोमेन क्या होगा, 2 and 3 बोथ, यानी रेंज जो है वो को डोमेन के ही घर से आता है, को डोमेन रेंज से बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहां लिखा रेंज इज अ सबसेट ऑफ को डोमेन। ठीक है, जैसे आपके घर में आप क्रिकेट प्लेयर हैं बट आपका छोटा भाई क्रिकेट नहीं खेलता है, करेक्ट, बट यू आर इन द सेम फैमिली, तो आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप प्राइज जीतते हैं या आप ट्रॉफी जीतते हैं, बट आपका छोटा भाई क्रिकेट खेलता ही नहीं है, बट ही इज देयर इन योर फैमिली, तो वो को डोमेन का पार्ट कहला गया। आप भी को डोमेन है,
आपका छोटा भाई भी कोडोमेन में आएगा, बट आप जो है क्रिकेट फंक्शन के लिए रेंज बनेंगे, क्योंकि आप ही खेलेंगे तो ही ट्रॉफी जीतेंगे, क्योंकि आपका छोटा भाई तो खेल नहीं रहा है। तो रेंज का मतलब क्लियर हुआ, रेंज आप हुए, क्योंकि आप क्रिकेट खेलेंगे तो ही ट्रॉफी जीतेंगे। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रेंज और कोडोमेन। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट, मेनी वन फंक्शन। इसको भी डिफाइन कर लें। अ फंक्शन f such that a to b, a और b दो सेट्स हैं डियर, नॉन एम्प्टी सेट। a to b is called many one function if there is at least one element in b which has more than one pre-image, प्री इमेज वन से ज्यादा हो सकता है, बट किसी भी एलिमेंट का इमेज एक ही होता है, ये याद रखिए। तो विच हैज मोर देन वन प्री इमेज इन ए, प्री इमेज इन ए डियर। तो इसको आप ऐसे समझ लो, मेनी वन सेट को मैं दिखाता हूं इसको लिख के। ये मान लीजिए आपके सेट हैं 1 2 3 4, और ये एक सेट एलिमेंट बी है, ये ए हो गया, डोमेन हो गया बी, इसके एलिमेंट मैंने ए बी सी लिया, ठीक है। तो आप देखो 1 एसोसिएटेड ए है, 2 भी एसोसिएटेड ए के साथ है, ठीक है, और 3 भी ए के साथ एसोसिएटेड है, और 4 बी के साथ है, ठीक है। सी रह जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 1 2 3 4 एलिमेंट्स ऑफ ए हमेशा सबके साथ एसोसिएट होना चाहिए। ए हर एक के साथ किसी न किसी के साथ होना चाहिए, 1B 2B 3B 4B, बट बी में कोई जरूरी नहीं है कि सबको प्री में सारे इससे कनेक्टेड हो, ठीक है। और यहाँ मेनी कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो दिस ए एलिमेंट को मोर देन वन प्री इमेज मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, और 3 भी मिल रहा है। ए हैज हाउ मेनी प्री इमेजेस? ए हैज 1 2 3, दीज आर प्री इमेजेस। ए को 3 प्री इमेजेस मिल गए, तो ऐसे फंक्शन मेनी वन कहलाते हैं। वर्ड से ही देखो, नाम से ही लग रहा है मेनी वन, यानी इस एलिमेंट ए को मोर देन वन प्री इमेजेस है, ठीक है। सो ऐसे फंक्शन कहलाते हैं मेनी वन फंक्शन। फाइनली फोर्थ टाइप जो है डियर, विच इज नोन एज into function. This we call into function. Into function. ये मेजरली 4 ये टाइप होते हैं, फिर बाद में वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन दिखेंगे आपको। अब into फंक्शन देख लो क्या है। अ फंक्शन f such that a to b is called into function if there is at least one element in B, set B, which is not the image
of any element of any element of A। ठीक है, जैसे यहां भी दिख रहा है आपको C, लेकिन यहां मेनी भी होना चाहिए। ठीक है, यहां ध्यान से देखिए, एनी एलिमेंट ऑफ A। दैट मीन्स इसको पिक्चोरियल समझो कि फंक्शन फ्रॉम A to B इज कॉल्ड इनटू फंक्शन if there is at least one element in B which is not the image of any element of A। लेट्स से अगर मैं इसको एग्जांपल में दिखाऊं, एटलीस्ट एक, दो भी ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं। एक सेट लेता हूं मैं A एंड अनदर सेट इज B। फंक्शन हमारा डिफाइंड है सच दैट A टू B। ठीक है, अब मैं यहाँ A के एलिमेंट 1 2 3 4 5 ले लिया। ठीक है, और B के एलिमेंट ले लिया A B C D E। करेक्ट। लुक एट दिस, 1 का A के साथ है एसोसिएशन, यानी A का प्री इमेज 1 है और 1 का इमेज A है। 1 का इमेज A होता है, इसको 1 का इमेज कहते हैं, और A का 1 क्या होता है? प्री इमेज। प्री इमेज ऑफ A इज 1। प्री इमेज ऑफ A इज 1 एंड 1 हैज इमेज A। ध्यान रखना है आपको ऐसे, इमेज और प्री इमेज। नाउ 2 C के साथ कनेक्टेड है, 3 A के साथ कनेक्टेड है, 4 C के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, 5 B, लेट्स से 5 को भी आप कनेक्ट करा दीजिए किन्हीं के साथ, 5 को B के साथ करा दीजिए। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट रह गया आपका D और E, या आप ऐसा करो 2 को D से कनेक्ट करा दो, C से मत करो। यानी एक एक सिंगल सिंगल दिख रहा है, तो एक अपने को E रह गया जिसका कोई इमेज नहीं है, प्री इमेज है। E रह जा रहा है ना, इसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो ऐसे फंक्शन इनटू कहला गए, इनटू फंक्शन। ठीक है, सो डियर, ये आपने देख लिया टाइप्स ऑफ फंक्शन। स्टार्टेड विथ 1 1, जो एक के साथ एसोसिएशन होता है। ऑन टू में क्या होता है? सारे एलिमेंट्स ऑफ बी के प्री इमेज मिलने चाहिए, बी में कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, सभी एलिमेंट इंगेज रहने चाहिए। और मेनी वन में क्या होता है कि ए के एलिमेंट ए 2 बी ए के साथ है, 3 बी ए के साथ है, 4 बी के साथ है। यहाँ पे मैंने सी छोड़ा है, तो ये भी मेनी वन में ही आएगा। और इनटू में भी आपको ऐसा दिख रहा है। क्वेश्चन आता है डियर कि सर मेनी वन और इनटू तो एक ही जैसा दिख रहा है, बट इसमें इनटू में मैंने जो दो जगह दो एलिमेंट लिए हैं, दो मत करिए। इसको मैं अच्छे से क्लियर कर दूं, क्योंकि कई बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि सर मेनी वन और इनटू तो एक ही जैसा दिख रहा है। इसको मैं फिर से एलॉबरेट कर देता हूं। लुक एट दिस, तो एग्जाम्पल आपका क्लियर हो जाएगा। ए मैंने एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4। ए के तो सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए, वो तो कंफर्म है। दिस इज ए एंड दिस इज बी, और मैं यहाँ पे एलिमेंट ले ले रहा हूँ ए बी सी डी ई। 1 ए के साथ है, 2 सी के साथ है, 3 बी के साथ है, और 4 लेट से ई के साथ एसोसिएटेड। तो ये देखो, ये डी रह गया। डी हैज़ नो प्री इमेज, इसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये कहला गया इनटू फंक्शन। यहाँ मेनी भी नहीं दिख रहा है, सब एक एक अपने अपने एसोसिएट हैं। 1 2 3 4 सभी एसोसिएट है यूनिकली, लेकिन डी को कोई एसोसिएशन नहीं है, तो ये इनटू हो गया। ठीक है, तो मेनी वन और इनटू में क्लियर हो गया डिफरेंस। मेनी में भी यहाँ पे मैंने सी छोड़ा था, लेकिन यहाँ पे ए को देखो, कई प्री इमेजेस हैं। ए हैज 3 प्री इमेजेस दिख रहा है, 1 2 3। क्लियर? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फंक्शन देयर मेजरली। जब प्रॉब्लम्स इस पे बेस्ड होंगे तो मैथमेटिकली हम इसको प्रूव भी करेंगे। कोई भी फंक्शन 1 1 कब होगा, ऑन टू कब होगा, मेनी वन कब होगा, और इन टू कब होगा। ठीक है, दिस इज व्हाट टाइप्स वी डिस्कस टिल नाउ। अब डियर, फंक्शन को, जो फंक्शन में हमने अभी तक बात करी, डोमेन रेंज भी देखा, अब हमें कुछ स्पेशल डोमेन और रेंज को मैं ठीक से डिफाइन करता हूँ, क्योंकि ये दो ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं फंक्शन के।
डोमेन एंड रेंज। और एक टर्मिनोलॉजी और दिखा था जिसको मैं कोडोमेन बोला था, कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या है? कोडोमेन रेंज कोडोमेन जो होती है वो रेंज को कंटेन करती है, यानी रेंज जो है वो कोडोमेन फैमिली से आता है। ठीक है, तो पहले हम डोमेन और रेंज देखें। कोडोमेन विल डिस्कस लेटर ऑन, वो सेट में ज़्यादा दिखता है। तो डोमेन एंड रेंज of a function, this is very very important area for discussion. See, डोमेन, अभी हमने पिक्चोरियल नोटेशन में क्लियर हुआ कि डोमेन ए के एलिमेंट होते हैं और रेंज बी के एलिमेंट होते हैं, और वो सारे एलिमेंट होते हैं जो उनका प्री इमेज है। जैसे अगर इस इनटू फंक्शन में देखो तो ए बी सी डी नहीं, ई, ए बी सी ई, ये रेंज होगा। ठीक है, क्योंकि इनको क्या मिला? प्री इमेजेस मिला। बट डी जो है वो रेंज नहीं होगा क्योंकि डी को प्री इमेज नहीं है। बट जब अगर आप ये पूरा ए बी सी डी ई लिखोगे, ये सारे एलिमेंट को एक जगह, इसको एक सेट में डालोगे, तो ये कहलाएगा कोडोमेन। ठीक है, दिस विल बी कोडोमेन ऑल्दो डी हैज नो प्री इमेज। और रेंज कौन सा होगा? जो एक्टिवेट किया है, पार्ट लिए हुए है, ए बी सी ई, एक्टिव है वो। ठीक है, सो इसी तरह मैथमेटिकली हमें यहाँ डोमेन और रेंज को भी समझना है डियर, कि किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज का मतलब क्या होता है। लेट्स से मैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा, दिस इज अ फंक्शन। एक्स की वैल्यू डालोगे, इस एफ एक्स को डियर वाई भी कहते हैं। ठीक है, एफ एक्स फंक्शनल नोटेशन है और वाई इक्वल्स टू बी हम कहते हैं। जो हमने ये रूल बनाया था ना, एफ सच दैट ए टू बी, तो ये एफ जो है इसका मतलब ये एफ एक्स है, और इसका मतलब ये वाई भी होता है। वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, या वाई सच दैट भी लिख, वाई सच दैट ए टू बी भी लिखते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं दिखेगा आपको, एफ एक्स दिखता है, एफ एक्स सच दैट ए टू बी। एफ एक्स इज वाई। ठीक है, एक्स इज फंक्शन और वाई क्या है? एफ ऑफ एक्स है। सो वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। अब डोमेन का मतलब फंक्शन में क्या होता है, हमने देख लिया सेट में कि ए और बी जब सेट था तो एलिमेंट्स ऑफ ए को हमने डोमेन बोला। अब यहाँ तो सेट नहीं दिखा रहे हैं हम आपको, फंक्शन है। तो डोमेन का मतलब होता है द वैल्यूज ऑफ एक्स विच यू आर पुटिंग इनटू द फंक्शन, वैल्यूज ऑफ एक्स which we are putting into the function, putting into the function is known as domain of a function. तो x की जो वैल्यू आप डालोगे, ठीक है, सो दैट फंक्शन डिफाइंड रहे। अब x कुछ ऐसा मत डाल दो, अब इन्फिनिटी डाल दोगे तो वैल्यू थोड़ी आएगी। यानी x के वो वैल्यूज डालिए जिससे फंक्शन डिफाइंड रहेगा, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू मिलना चाहिए। तो वो x जो हो, जो वैल्यूज ऑफ x डाल रहे हो, उसको कहते हैं डोमेन। ठीक है, लेट्स से और एग्जांपल से समझो कि जैसे आपका मोटरसाइकिल है, जैसे आपका एक्टिवा है मान लीजिए, तो एक्टिवा में आप पेट्रोल डालते हो। ठीक है, तो पेट्रोल जो है वो है डोमेन। पेट्रोल क्या है डियर? डोमेन है। कार चलाते हो, कार में जो पेट्रोल डालते हो दैट इज डोमेन। ठीक है, जो वैल्यू डालो आप एक्टिवा में वाटर तो नहीं डालोगे, एक्टिवा वाटर से तो नहीं चलता है डियर, तो वाटर इज नॉट अ डोमेन। दैट मीन्स डिफाइंड होना चाहिए, वो फंक्शन करना चाहिए। तो गाड़ी कभी चलती है जब आप उसमें पेट्रोल डालते हो, तो पेट्रोल इज डोमेन हियर। ठीक है, हम वाटर नहीं डाल सकते हैं, केरोसिन ऑयल नहीं डाल सकते हैं, भाजी बनाने वाला तेल नहीं डाल सकते हैं, बाइक नहीं चलेगी, एक्टिवा नहीं चलेगी। सो तो वैल्यूज ऑफ एक्स विच वी आर पुटिंग इनटू द फंक्शन सो दैट फंक्शन इज डिफाइंड, यानी फंक्शन को कुछ ना कुछ वैल्यू आना चाहिए और वो भी रियल आना चाहिए।
रियल वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू नहीं, रियल वैल्यू, रियल वैल्यू आना चाहिए, तो हम उसे डोमेन कहते हैं। ठीक है, जो वैल्यू ऑफ एक्स का फंक्शन में आप डालते हो, जिससे फंक्शन में कुछ ना कुछ वैल्यू आने चाहिए, तो वैसे वैल्यू को डोमेन ऑफ अ फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और रियल वैल्यू आने चाहिए, इसलिए इसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन, फंक्शन हम हमेशा रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ते हैं। रियल वैल्यू की बात होती है जिसमें डोमेन रियल होता है और रेंज भी रियल होगा। सो नाउ वी केम टू नो डोमेन के बारे में कि द वैल्यू व्हाट वी आर पुटिंग इनटू द फंक्शन। लेट्स से एक गन ले लो, गन आप देखते हो, गन है, इस गन में जो आप बुलेट्स डालोगे, जो बुलेट्स होते हैं वो डोमेन होता है। बुलेट्स आर डोमेन। गन के अंदर, सॉरी, गन, ये गन है और इसके अंदर बुलेट्स डालने वाले हो, बुलेट्स, बुलेट्स डालोगे तो गन में बुलेट रहेगा तभी तो फायर होगी वो। तो ये गन आपका डोमेन हुआ और बुलेट्स क्या हो गए, रेंज हो गए। कहने का मतलब जो वैल्यू आप डालते हो, कहाँ डाल रहे हो, फंक्शन में डाल रहे हो, कौन सी वैल्यू डाल रहे हो, एक्स की वैल्यू डाल रहे हो, तो वो डोमेन है। उसी तरह आप गन में, ये जो गन है हमारा वो है डोमेन, और जो वैल्यू निकल के आती है, जब आप एक्स की वैल्यू डालते जाते हैं, जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम रेंज कहते हैं। द वैल्यू व्हाट इट कम्स आउट, वो रेंज होता है। तो ये बुलेट्स हमारे रेंज हो गए। बुलेट्स ही बाहर निकलता है ना पिस्टल से, पिस्टल में आप बुलेट डालते हो तो पिस्टल हमारा डोमेन है और रेंज क्या है, बुलेट्स। दैट मीन्स अगर मैं फंक्शन में बात करूं, अगर मैं इस फंक्शन में x की वैल्यू 1 डाला तो f1 क्या आएगा, इनफैक्ट y कह लो या f1 बोलो, तो 1 डालने पे ये क्या आएगा डियर, 1 स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 3। तो 3 जो है वो रेंज है, 3 इज रेंज। और 1 जो आपने डाला है, दिस 1 x इक्वल्स टू 1 विच यू हैव पुटेड, दैट इज डोमेन। ठीक है, डोमेन और रेंज का ये कंसेप्ट अच्छे से समझे आप। लेट्स से y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x। ठीक है, अगर मैं, या fx लिख दो इसको, fx इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x। अब मैं x जो है 30 डिग्री डाल रहा हूं, तो ये डोमेन हो गया। द वैल्यू व्हाट यू आर पुटिंग, दिस इज डोमेन। तो f 30 डिग्री डालोगे तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये कितना होगा, 1/4। दिस इज गोइंग टू बी 1/4। तो ये जो वैल्यू आई इसको कह देंगे रेंज। ठीक है, दिस इज डोमेन, जो वैल्यू पुट कर रहे हो, और जो वैल्यू निकल के आ रही है उसको क्या कह देंगे, रेंज। ठीक है, दिस इज व्हाट डोमेन एंड रेंज कंसेप्ट। उसी तरह हम फंक्शन में बारी बारी से सभी के डोमेन और रेंज निकालना सीखते हैं। अब आइए, अगर मैं एक और फंक्शन की डिस्कस करूं, एफ एक्स इक्वल्स टू, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, लेट्स से एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 18 ले लिया मान लो। अब मुझे इस फंक्शन का डोमेन, ठीक है, और एंड रेंज चाहिए, डोमेन एंड रेंज चाहिए। ठीक है, दिस क्वेश्चन। तो x आप क्या क्या वैल्यू आप डाल सकते हो, तो डोमेन में यहाँ पे लिख सकता हूँ x की कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हो, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर यू कैन पुट। सो डोमेन इज ऑल रियल नंबर, जिसको आप इंटरवल फॉर्म में लिखते हो तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसके अंदर जितने नंबर है, और ये ओपन इंटरवल है, मतलब दोनों एंड एक्सक्लूडेड है। हमने इंटरवल में सीखा है ओपन इंटरवल, एंड को हम नहीं इंक्लूड करते हैं। सो इसका डोमेन क्या हुआ इस फंक्शन का, ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप इस x की जगह डाल सकते हो। लेकिन रेंज क्या होगा, रेंज विल बी, कुछ भी वैल्यू डालो तो रियल ही वैल्यूज आएंगी, सारे रियल ही आएंगे, तो ये भी रियल आएगा। रेंज क्या आ जाएगा, ये भी रियल नंबर आ जाएगा।
ठीक है, कोई भी वैल्यू डाल रहे हो एक्स का, तो 1 - 18 डाला, 2 डाला आपने, 4 - 18 ये भी रियल है, करेक्ट। 18 डाला तो 18 - 18 भी 0 है, ये भी रियल है। तो इस फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों ही रियल नंबर है, या कैपिटल आर से भी लिखते हैं इसको, या ये नोटेशन भी बुक में मिलेगा, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी या आर। सो इस फंक्शन का डोमेन आर हो गया, रेंज भी आर हो गया, ठीक है। तो ये डोमेन रेंज को बड़े अच्छे से समझना है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमें डोमेन रेंज करने के लिए, एंड देन वी विल डिस्कस द स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो मैं कुछ फंक्शंस ले रहा हूं जिसके डोमेन और रेंज हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। द टेक्स्ट बुक इज क्वेश्चन नंबर 8 है डियर, इसको ध्यान से समझो, क्वेश्चन नंबर 8। उसके पहले भी क्वेश्चन है, वो सारे फंक्शन के रिप्रेजेंटेशन है, वो आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है। उसको मैं बाद में ही लेता हूँ डोमेन रेंज को, पहले और भी चीज़ों को समझ लिया हमने, जस्ट एक एग्जांपल डिस्कस कर लिया कि डोमेन और रेंज ये होता है। आगे हम थोड़े और चीज़ों को समझते हैं, देन वी विल गो टू द एक्सरसाइज प्रॉब्लम। अब आता है डियर कि फंक्शन को जब रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लिया, लुक एट दिस, इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके टेक्स्ट बुक का, पेज नंबर 170, पेज नंबर 117। क्वेश्चन है कि इफ एफ एम इक्वल्स टू एफ एम, एफ ऑफ एम, तो फंक्शन एम में ही दिखेगा, m² - 3m + 1, ठीक है। फाइंड f0, पहला क्वेश्चन f0 है, 0। सेकंड है what you have to find, f of -3। third is f of 1/2। fourth is f of x + 1, ठीक है। फिफ्थ इज ABCDE में दिया हुआ है, f of -x, और 6 is given f of 2 + h minus f2 upon 3 where h not equals to 0, ठीक है। 1 by 1 हम इसकी वैल्यूज देखते हैं कैसे होगा। तो पहले हम f0 निकालेंगे, तो जहाँ पे m है वो 0 हो जाएगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ f0। तो 0² - 3 × 0 + 1, वैल्यू विल बी 1। ये फंक्शनल वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू आ गई, और ये जो 0 हो गया ये डोमेन हो गया, ये जो आंसर आ गया वो रेंज हो गया। बट डोमेन रेंज तो बताना नहीं है, केवल वैल्यू बताने हैं आपको। सेकंड में देखो, f of -3, f of -3, तो जहाँ जहाँ m है वहाँ -3 डाल दीजिए, -3² -3, दिस इज -3, m की वैल्यू क्या है, -3 + 1, इसको सॉल्व कर लो, 9 + 9 + 1, इजिली यू कैन गेट आंसर, ठीक है। थर्ड में देखो आप, f of 1/2, यानी m के जगह आप 1/2 डालेंगे, 1/2 का स्क्वायर, m के जगह 1/2 डालो, 3 × 1/2 एंड +1, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/4 -3/2 + 1, so altogether if you simplify you will get -1/4, ठीक है। अब आप f of x + 1 डालिए, तो जहाँ जहाँ m है वहाँ x + 1 आएगा। fm फिर से लिख लो, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे फोर्थ वन, fm is given m² - 3m + 1, तो f of क्या डालना है, x + 1, x + 1, तो जहाँ जहाँ m है वहाँ x + 1 डाल दो, x + 1 होल स्क्वायर -3 × x + 1 एंड +1। अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, x² + 2x + 1 -3x - 3 + 1, ठीक है। और ये फर्दर सिंप्लीफाई होके कितना हो जाएगा डियर, x²
minus x and 2 minus 3 minus 1. ठीक है. So this way fx की वैल्यू you can calculate. ठीक है डियर, ये वैल्यूज आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. x प्लस 1 डाला है तो माइनस 3x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ये कितना हो गया 2 माइनस 3 माइनस 1. क्लियर. f ऑफ माइनस एक्स भी डाल दो. फिफ्थ में माइनस था, f ऑफ माइनस एक्स, तो जहाँ जहाँ m है वहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा. माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस एक्स प्लस 1, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. तो ये आपके फंक्शनल वैल्यूज आप इस तरह से जहाँ पे m है वहाँ पे वो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है. सो दीज आर सम्स वेयर द फंक्शनल वैल्यू आप निकालते हैं. आप एक्सरसाइज 4 के ये सम्स देख लेंगे, खुद से कर सकते हैं ये सारे प्रॉब्लम्स. ठीक है. अब देखिए इसी में एक और टाइप देखो. फंक्शन के ये बेसिक चीजें हैं, डोमेन रेंज जानने से पहले हम ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. फाइंड x if gx इक्वल्स टू 0. gx इक्वल्स टू 0 दिया है. a हमारे पास gx दिया है डियर 5x माइनस 6 बाई 7. क्या कह रहा है gx इक्वल्स टू 0. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x माइनस 6 बाई 7 क्या हो गया, दिस इज 0. यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे. x कितना हो जाएगा डियर 5x माइनस 6 0, therefore x is 6 by 5. सिंपल है, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आप. लेट्स से इसमें बी सी डी आप कर सकते हैं. डी में बता रहा हूँ. D1 डी देख लो 5 का डी. gx दिया हुआ है डियर एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ठीक है. gx इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स कि ये वैल्यू एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या है, 6 इज 0. अब अपने को x की वैल्यू चाहिए, तो क्यूबिक इक्वेशन हो गया. क्यूबिक इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड. इसके अंदर आप वैल्यू देखिए. अगर मैं x इक्वल्स टू 1 डालूँ, इफ यू पुट x इक्वल्स टू 1, तो ये पूरा 0 हो जाएगा. चेक कर लो. 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6, देखिए ये 0 आ रहा है. दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1 इज वन ऑफ द फैक्टर. x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया, और इसको डिवाइड कर लीजिए. 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को. ठीक है. x इक्वल्स टू 1 इसको 0 कर रहा है, तो x इक्वल्स टू x माइनस 1, ये जो x इक्वल्स टू 1 है, ये x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इसका एक फैक्टर हो गया. इससे इस क्यूबिक को डिवाइड करते हैं. ठीक है. सो वंस यू डिवाइड, सो लुक एट दिस. एक्स स्क्वायर से पहले डिवाइड किया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कर दीजिए, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया. दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. अब ये माइनस एक्स से जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर साइन चेंज कीजिए, तो ये माइनस 6x प्लस 6 आ गया. अब कितने से डिवाइड हो सकता है, माइनस 6 से. सो माइनस 6x और प्लस 6 हो गया. इंटू करते जाओगे ना इससे, तो ये माइनस, तो ये 0 आ गया. दैट मीन्स इसका फैक्टर क्या निकल आया, x माइनस 1. ठीक है. इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0. ठीक है. फिर इस क्वाड्रेटिक को भी हम ब्रेक कर सकते हैं. x माइनस 1 तो एक फैक्टर है ही, इसका फैक्टर क्या मिलेगा अपने को, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0. इस तरीके से क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज की जाती है विद द मेथड ट्रायल एंड एरर. ट्रायल एंड एरर मेथड. ठीक है. आप कोई x की वैल्यू चूज कीजिए जो इसको 0 करता हो, प्लस हो या माइनस हो. 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2,
अगर आपने 1 लिया तो x माइनस वन इसका फैक्टर होगा जो इसको जीरो कर रहा है, और x माइनस वन से इसको डिवाइड करेंगे अलजेब्रिकली, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, या आप रफ में भी कर सकते हो। तो हमें ये फैक्टर आया और क्वाड्रेटिक को भी फैक्टराइज कर दिया। तो x के कितने कितने सोल्यूशन आ गए, 1, 3 और -2। दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। ठीक है डियर। सो आज के इस लेक्चर में हमने जो थोड़े बेसिक डिस्कस किए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5, इस बेस्ड पे मैं कुछ आपको सम्स दे रहा हूँ, और पीछे आप थ्योरी पार्ट पूरा रिकैप कीजिए, टाइप्स ऑफ फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन, ये सारे को गो थ्रू करो, 2 बार पढ़ो। ठीक है, पूरी थ्योरी पार्ट को अच्छे से समझिए, वीडियो को 2 बार 3 बार सुनिए, डोमेन रेंज के बारे में समझिए, और डोमेन रेंज हम आगे प्रॉब्लम्स में करेंगे। और ये कुछ फंक्शनल बेस्ड क्वेश्चन दिया है, इस तरह के क्वेश्चन मैं 2 दे रहा हूँ जो आप ट्राई करेंगे एज ए होमवर्क। लुक एट दिस होमवर्क इज, जो लास्ट के 2 टाइप हमने किए हैं उस पर बेस्ड आई एम गिविंग यू सम प्रॉब्लम्स विच यू कैन ट्राई टुडे। यस डियर, क्वेश्चन लिखिए, एफ एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। एफ एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट f of minus 2, second is f of x plus 1। ठीक है, this is question number 1। Question number 2, fx equals to, if fx equals to ax square प्लस 2x प्लस c लिखा है, एंड f0 is -3, f minus 1 इक्वल्स टू -4, ये वैल्यू दी हुई है, f minus 1 -4 आ रहा है। फाइंड a and c, फाइंड a and c। ठीक है, दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। पहले तो fx में आप f minus 2 और f(x plus 1) करोगे। दूसरे क्वेश्चन में fx की ये इक्वेशन दी है, f0 -3 दिया है, f minus 1 भी -4 दिया है, तो a और c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। करेक्ट। So these 2 questions today all of you try after going through the entire theory part। ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। So the next class we have some special types of function और डोमेन एंड रेंज के प्रॉब्लम्स we will discuss। ये दोनों ही सम आप टुडे ऑल ऑफ यू ट्राई, और थ्योरी पार्ट भी पूरा गो थ्रू करो, हर एक सम्स को समझो, हर एक थ्योरी पार्ट को। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। फाइन डियर। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। आप ये सारे होमवर्क कीजिए। थैंक यू।